Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Pick those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends. 4 cards अपने आप गिरे हैं. The Devil, 8 of Pentacles, 5 of Wands and Justice. ओके चलिए हम इसको ले लेते हैं रीडिंग में. So I was saying that it's a timeless reading, friends. So whenever you will reach this recording, you will definitely benefit from it. It will surely help you. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading becomes its topic. 3 और cards, 2 और cards नीचे गिरे हुए हैं. I'll just pick them up. I'll see. I'll mix the cards well first. So I was saying that my readings have no pre-decided topic, and whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, means if you want reading for any particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. So let me mix it one more time. Okay, let me see those 2 cards. Queen of Cups, Queen of Wands. Okay, 1 2 3 4 5 6 cards fell down on their own, so I have taken them all in the reading. Okay, so I'll just spread the card in one go and then I'll start the reading. So let's quickly see what is God's message. 2 और कार्ड गिरा है. Okay, wait. The Hierophant and 10 of Pentacles. Okay, so now we have 8 cards with us that popped up themselves, so I have taken them all in the reading. Okay, enough for now, and now I'll spread the cards. Okay, चलिए तो देखते हैं कि what is the message, what's the God's message for all my listeners at present. Okay, so I'll take out the cards now. The World, 5 of Cups, 2 of Wands, The Tower. वैसे मुझे आज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले पता नहीं क्यों लग रहा था कि टावर का कार्ड आएगा, और टावर का कार्ड आ गया और डेविल का कार्ड भी गिरा अपने आप. ओके, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, 6 of Wands, 2 of Pentacles, 3 of Wands, Knight of Wands, 3 of Cups, 9 of Pentacles, Knight of Cups, Ace of Cups, Temperance, the Star. Bottom of the deck is 4 of Swords. I'll keep the deck aside now. And friends, we have 8 more cards with us. 10 of Pentacles, 5 of Wands, Devil, 8 of Pentacles, Justice, Queen of Cups, Queen of Wands, Hierophant. एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ पिछले कुछ रीडिंग से ना, जस्टिस और मैजिशियन, ये दोनों कार्ड ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड रीडिंग में आ रहा है, और शायद फ्रिक्वेंटली आ रहा है, मतलब एवरी डे फॉर लास्ट सम डेज. आई थिंक जस्टिस कल नहीं आया था, बट परसों आया था.
सो जस्टिस एंड मजिशियन, ये बहुत फ्रिक्वेंटली ये कार्ड्स आ रहे हैं. एक जजमेंट का कार्ड आज नहीं आया है, बट वो कार्ड भी आ रहा है कुछ दिनों से एवरी सेकेंड रीडिंग में. तो मैसेज ये है कि मैजिशियन का कार्ड प्रेजेंट है, मतलब अभी आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में हो. जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो अभी ये बिल्कुल सही समय है मैनिफेस्ट करने का. और मैनिफेस्टेशन वर्क कब करता है? जब एक पर्सन ने मेहनत एक अच्छे लेवल की कर ली हो. ऐसा नहीं होता है कि आप बैठे बैठे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप कुछ काम नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ सोच रहे हो कि वो हो जाए. ठीक है, मेंटल लेवल पे भी कुछ एक एक्सटेंट तक काम होता है, इमेजिन करके भी होता है, बट इमेजिन करने के बाद जो स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप टू वर्क ऑन दैट, तो सिर्फ इमेजिन करके बैठना जो है वो यूज़फुल नहीं है. तो इमेजिन करके फर्स्ट स्टेप इज़ टू इमेजिन योर सक्सेस एंड देन टू वर्क ऑन दैट. तो मजिशियन का कार्ड अभी कुछ दिन से मैं देख रही हूँ रीडिंग के अंदर फ्रिक्वेंटली आ रहा है, जो ये मैसेज दे रहा है कि बिल्कुल ये कार्ड का प्रेजेंस ये तो बताता है कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है, आपने मेहनत बहुत की है. मेहनत किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है. मेहनत आप हो सकता है कुछ रिश्तों पे आपने बहुत मेहनत की हो सकता है कि किसी वर्क प्लेस पे आपने बहुत मेहनत की हो, ओके, रिलेशंस में बहुत मेहनत की हो. कुछ ऐसा स्ट्रगल किसी भी टाइप का हो सकता है, जहाँ पर स्ट्रगल का मतलब ही होता है कि अपने आप को सस्टेन करने के लिए कहीं पर भी, चाहे फैमिली में या फिर बाहर वर्क प्लेस पे या कहीं पर भी, जहाँ पर आपको अपने आप को सस्टेन करने के लिए मेहनत करनी पड़े, स्ट्रगल करना पड़े. ठीक है, अनफेवरेबल सिचुएशंस का सामना करना पड़े, वही है स्ट्रगल. और आप मन लगा के सामना करें, इस फोकस के साथ, इस दृढ़ संकल्प के साथ कि मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है. ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन काम करता है. मीन्स इमेजिनेशन भी है और हार्ड वर्क भी है उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए. ठीक है, तो तब मैनिफेस्टेशन काम करता है. तो इस वक्त ना आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, क्योंकि पास्ट कुछ दिनों से मैजिशियन का कार्ड रिपीटेडली आ रहा है. तो ये कंसिस्टेंट मैसेज मुझे लग रहा है कि आपने मेहनत बहुत की है या आप मेहनत कर रहे हो. तो आप जिस चीज़ के लिए भी मेहनत कर रहे हो, वो किसी भी एंगल में हो सकता है, तो वो आप मैनिफेस्ट करोगे. ठीक है, कुछ लोग हेल्थ इश्यूज़ बहुत फेस करते हैं, वो अपनी हेल्थ से बहुत परेशान रहते हैं. तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में हो, आप मजिशियन की एनर्जी में हो, यू कैन अट्रैक्ट गुड हेल्थ फॉर योरसेल्फ. कुछ लोगों को वेल्थ का इनफ्लो लाइफ में चाहिए, अपने आप को बहुत वेल्दी देखना चाहते हैं, तो मैनिफेस्ट गुड वेल्थ इन योर लाइफ. लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जो मजिशियन की एनर्जी वाला पर्सन होता है, उसके पास सारे एलिमेंट्स की एनर्जी प्रेजेंट है. इस पर्टिकुलर कार्ड की मैं बात करूँ तो इस कार्ड में जो पर्सन है वो इंटेलेक्चुअल भी है, वो स्पिरिचुअल भी है, वो अवेकन्ड भी है, क्योंकि उसके सर के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है. और उसने अपने ऊपर, अपने इनर स्ट्रेंथ पे इतना काम किया है कि उसने अपने इनर पावर को जागृत कर लिया है. ठीक है, अपने अंदर की ताकत को जागृत कर लिया है. उसको फुल कंट्रोल है अपने इमोशंस पर. वो अपने इमोशंस का यूज़ कर सकता है. किस चीज़ में? मतलब वो इमोशन को कंट्रोल कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज नीड. ठीक है, इस पर्सन के पास, इस मैजिशियन के कार्ड में जो फिगर है, इसके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है. तो अगर इसके पास हेल्थ और वेल्थ है, तो मतलब आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो हेल्थ एंड वेल्थ बोथ इन योर लाइफ. ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है. ठीक है, दिस पर्सन हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर सक्सेस. जो कि चाहिए, क्या क्या चाहिए सक्सेस के लिए? यू शुड हैव पैशन फॉर दैट, उस तरह की थिंकिंग, उस तरह का दृढ़ संकल्प. यू शुड हैव इमोशनल कंट्रोल. इमोशंस भी आपके उसी तरफ होने चाहिए. मतलब अपना सारा जो एनर्जी है, सारा इमोशनल एनर्जी कह लो, मैं फोकस के सेंस में लूँगी, कॉन्सेंट्रेशन के सेंस में लूँगी इसको, वो सारा आप एक तरफ डायरेक्ट करो, जो भी आपने अपने लिए गोल बना रखा है. ठीक है,
वो कुछ भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। तो सारी ऊर्जा को उस तरफ डायरेक्ट करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है, एंड यू विल अचीव दैट। ये पर्सन बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसका इंटेलेक्ट बहुत ज़बरदस्त का काम करता है, तो मतलब इस एनर्जी में जो पर्सन होगा वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल होगा, ठीक है। रिसोर्सफुलनेस का कार्ड है, मतलब इसके पास वो सारे ही रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि इसके पास वंड्स भी है, पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, कप्स भी हैं, और ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये कुछ ये एनर्जीज़ हैं, ये बिलोंग करते हैं फायर, वाटर, एयर और अर्थ एलिमेंट को। तो इसने अपने इसका इनर स्ट्रेंथ इतना इसने अपना जगा लिया है कि ये सारे एलिमेंट्स, ये सारी एनर्जीज़ इसके कंट्रोल में है, और ऐसा ही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। तो ये कार्ड अभी रिपीटेडली रीडिंग में आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट का काम जो टाइम है ये बहुत ज़बरदस्त का टाइम है। आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, और आप मैनिफेस्ट इसलिए कर सकते हो क्योंकि शायद आप कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आप पास्ट से ही स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तभी अभी मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। जस्टिस का कार्ड भी मैंने बोला कि जस्टिस का कार्ड भी जो है ये आ रहा है, पिछले कुछ रीडिंग से रिपीटेडली आ रहा है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन से तो आ ही रहा है, ठीक है। तो जस्टिस का कार्ड के होने का मतलब है कि ये जो टाइम चल रहा है इसमें सारे एक्शंस का हिसाब किताब होना। जिसने भी आपके साथ गलत व्यवहार किया है, बुरा बर्ताव किया है, या आपको अननेसेसरीली पेन की सिचुएशन में डाला है, ओके, क्योंकि पास्ट के एनर्जी में टावर मोमेंट भी है, टावर का कार्ड भी आया है, एंड द डेविल का कार्ड अपने आप गिरा था। तो बिल्कुल आपने कुछ लोगों की वजह से कष्ट उठाए हैं लाइफ के अंदर। इससे जो है मैं इस बात को नकार नहीं सकती, क्योंकि टावर की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी में टावर है। तो आपने बिल्कुल कुछ लोगों की वजह से दुख उठाए हैं, शायद जो तकलीफ़ आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो पीड़ा आप डिज़र्व नहीं करते थे, उस तरह की सिचुएशन में आपको जाना पड़ा कुछ लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से। तो जस्टिस का टाइम चल रहा है, ये पे बैक का टाइम चल रहा है ऐसे लोगों को जिन लोगों ने आपको, मैं कहूँगी कि अननेसेसरीली परेशान किया, मतलब आप की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने दर्द उठाया। तो अब ये समय चल रहा है कि ऐसे लोगों को उनके किए की सज़ा मिले। मैंने शायद परसों भी बोला था कि कुकर्मों की सज़ा, तो कर्म नहीं, कुकर्मों की सज़ा मिलती है ना। तो ऐसे लोगों को अब उनका कर्मा रिटर्न होने का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो स्प्रेड करते ही कार्ड मुझे दिखा और मैंने आपके साथ शेयर किया, ओके। अब आगे रीडिंग करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये सरेंडर का कार्ड होता है। तो बिल्कुल आपने सरेंडर कर दिया है, गॉड को कर दिया होगा। जो भी ट्रबलिंग सिचुएशंस आपने लाइफ में फेस किया, किसी भी वजह से हो सकता है, ओके, किसी भी एंगल से आप इसको देखिए, अपने आप से रिलेट करके देखिए। जिस भी कारण आपने पास्ट में दुख झेला, जो जैसा मैंने बताया कि डेविल का कार्ड प्रेजेंट है, टावर का कार्ड प्रेजेंट है, तो कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ हुई है, नकारात्मक लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ हुई है, नो डाउट, ये दिख रहा है मुझे। तो अब आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके होंगे, या आप कर दीजिए, आपके लिए ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, आप टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए जो हमारे हाथ में नहीं होती, और उसके लिए हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी होती है, भगवान ही कुछ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आपके लिए मैसेज यही दिया जा रहा है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है कि आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि इस कार्ड का मैसेज है कि इस कार्ड का मतलब है कि जो पर्सन है वो उसने सरेंडर कर दिया है भगवान को, और वो कॉन्टेम्पलेशन की पोजीशन में चला गया है। मतलब जो हुआ उसके साथ, जो भी एक्शंस उसने फेस किए, या जैसी भी उसकी लाइफ अभी तक रही, उसने क्या किया है, उसने भगवान को सरेंडर कर दिया है। अब उसने अपनी प्रॉब्लम्स को भगवान को समर्पित कर दिया है, और वो कॉन्टेम्पलेशन की स्थिति में
चला गया है. तो ही इज़ रेस्टिंग, ही इज़ कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द थिंग्स, ऑन द प्रॉब्लम्स दैट ही हैज़ फेस्ड एंड ऑन द थिंग्स दैट हैव हैपेंड. तो आप बिल्कुल सरेंडर की पोजीशन में हो, वो मुझे आराम से दिख रहा है. आपने कर ही दिया होगा, ठीक है. और अगर नहीं किया है तो कर दीजिए. ओके, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए. वैसे आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कर ही दिया होगा सरेंडर. आई नो दैट, आई एम श्योर अबाउट दैट. क्योंकि अगर मैं आपके व्यक्तित्व की बात करूं तो आप टेम्परेंस की एनर्जी वाले पर्सन हैं, हेरोफेंट की एनर्जी वाले पर्सन हैं, ठीक है. और यस, द स्टार का कार्ड प्रेजेंट है. तो द स्टार के कार्ड का होने का मतलब है कि आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सको, ठीक है. आप एक स्टार सीड हो और आप ऐसे ही लाइफ में नहीं आए हो. आपके होने का पर्पज़ है पर्सनल ग्रोथ. तो पर्सनल ग्रोथ कैसे होती है? पर्सनल ग्रोथ से यहाँ पर मेरा मटेरियलिस्टिक कोई मतलब नहीं है, वेल्थ के एंगल से कोई मतलब नहीं है. यहाँ पर मैं योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रही हूँ. योर इनर स्ट्रेंथ, आपका जो एक मीन्स एक जो दिव्यता है आपके अंदर, उसकी ग्रोथ. आप स्पेशल चाइल्ड हो डेफिनेटली. जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे. ऐसे पर्सन होंगे जो अपने ऊपर काम करते होंगे. ऐसे पर्सन होंगे जो हर सिचुएशन में अपने एक्शंस को एनालाइज पहले करते होंगे. आप सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा करते होंगे क्योंकि आप एक स्टार सीड हो. और ऐसे लोगों की लाइफ इजी नहीं होती. उन्हें बार बार भगवान डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालते हैं. एक के बाद एक स्ट्रगल की सिचुएशन उनके लाइफ में आती है और वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है. उन्हें कभी कभी रिलेशंस में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उससे भी उनका पर्सनल ग्रोथ होता है, ठीक है. तो किसी भी एंगल से स्टार जो स्टार सीड होते हैं उनकी लाइफ ईजी तो बिल्कुल नहीं होती. ये जो कार्ड है ये रिन्यूअल का कार्ड है. जैसा कि मैंने बताया कि आप जन्मे ही इसलिए हो कि आप अपने ऊपर काम कर सको, ठीक है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कर सको. तो स्टार का कार्ड जो है वो फेथ का कार्ड है, वो रिन्यूअल का कार्ड है, वो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है. और वो बताता है कि दिस इज़ द बर्थ फॉर पर्सनल ग्रोथ. वो ये बताता है इस तरह का जो पर्सन होता है ना, जो इस एनर्जी का पर्सन होता है, वो अंदर से बहुत, वो इस चीज़ में होता है, वो हमेशा थैंक्स करता है. हर चीज़ के लिए वो भगवान को थैंक्स करता है. वो हर चीज़ में भगवान का ब्लेसिंग देखता है. इस तरह का पर्सन होता है जो द स्टार की एनर्जी वाला होता है, जो स्टार सीड होता है. आप खुद भी दिव्य हो और आप अपनी दिव्यता को फैलाने ही आए हो, ठीक है. टेम्परेंस का कार्ड भी प्रेजेंट है. तो टेम्परेंस का जो कार्ड होता है ये कई बार रीडिंग में आ चुका है और मैंने बताया है कि इस कार्ड के अंदर जो पर्सन है वो एक एंजेलिक फिगर है, वो कोई मेल फीमेल नहीं है. तो द स्टार और टेम्परेंस ये कोइंसिडेंटली एक ही साथ लाई कर रहे हैं. तो आपकी एनर्जी कुछ दिव्य ही है. यू आर एन एंजेलिक फिगर, ओके. आपकी जो एनर्जी है वो एक एंजेलिक फिगर वाली एनर्जी है. आपका जो व्यक्तित्व है वो इस तरह से कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत इमेजिनेशन है दूसरों का अच्छा, राइट. कुछ अच्छा ही सोचते रहते हैं आप. इस तरह के आप पर्सन हैं. टेम्परेंस के कार्ड का मतलब है कि इस पर्सन के माइंड में जितने भी आइडियाज़ हैं, जो भी इमेजिनेशन है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट होने की ज़रूरत है. तो आप एक एंजेलिक फिगर हैं, तो बिल्कुल आप जो भी सोचेंगे, जो भी इमेजिनेशन आपके दिमाग में है, वो कुछ अच्छा ही है, उसमें भलाई ही है. आपकी भलाई, फैमिली की भलाई, दूसरों की भलाई. तो आप अच्छा ही सोचते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं. तो ज़रूरत है कि आप अपने इमेजिनेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए. ये मैसेज है आपके लिए. और द स्टार का कार्ड प्रेजेंट है. तो बिल्कुल आप आए ही हो इसलिए कि आप अपना भी ग्रोथ करो, दूसरों का भी ग्रोथ करो, ठीक है. 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी प्रेजेंट है यहाँ पे. तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि
अभी अब डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति से बाहर निकलिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड होता है डिसअपॉइंटमेंट का, रिग्रेट का, ठीक है, रिग्रेट विद अनएक्सपेक्टेड आउटकम। मतलब ये आपके पास्ट की एनर्जी में आया है, तो मुझको बिल्कुल आई कैन बी श्योर दैट आप निकल चुके होंगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी घटी, ठीक है, क्योंकि टावर के साथ ये कार्ड है, तो बिल्कुल ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ आपके लाइफ में ऐसा घटित हुआ, कुछ ऐसे लोग हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे निकल गए कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देंगे वो लोग या हो जाएगा। तो जो 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो यही बताता है कि जो पर्सन है वो बहुत डिसअपॉइंटेड खड़ा है, रिग्रेट की एनर्जी में है कि मैंने क्यों भरोसा किया या मैंने ये स्टेप क्यों ले लिया, इस तरह से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो जो 3 कप्स गिरे हुए हैं ग्राउंड पे, वो उन्हीं को देखे जा रहा है, लेकिन जो डिवाइन है वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और आपके साथ हमेशा खड़े हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि अब आप निराश हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपना जो विज़न है उसको थोड़ा टर्न कीजिए। आपके बैक में आप 2 कप्स की तरफ बैक करके खड़े हो, मतलब 2 कप्स अभी भी एकदम गुड पोजीशन में ग्राउंड पे दे आर स्टैंडिंग ओके इन अ वेरी गुड कंडीशन। तो वो आदमी उनको देख ही नहीं रहा है, मतलब रास्ते खुले हैं, तो उनको देखने की आपको ज़रूरत है। ये आपके पास्ट की एनर्जी में आया है, तो मुझको लगता है कि आप इस सिचुएशन से निकल गए होंगे, डिसअपॉइंटमेंट और रिग्रेट की सिचुएशन से निकल गए होंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, आपने नई शुरुआत कर ली होगी। जब आपको कुछ चीज़ों का पता चल गया, कुछ चीज़ें रिवील हो गई आपके सामने, कुछ लोग रिवील हो गए आपके सामने, तो आप ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटेड तो हुए ही होंगे। ओके कुछ भी इंसिडेंट अगर ऐसा हुआ जो डिसअपॉइंटिंग था, तो आप रिग्रेट की पोजीशन में चले ही गए होंगे, लेकिन उस वक्त भी भगवान ने आपके लिए 2 कप्स को संभाल के रखा, मतलब आपके लिए रास्ते खुले थे और आपने उन रास्तों को सिलेक्ट कर भी लिया होगा, आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान भी लिया होगा। और अगर नहीं पहचाना है तो पहचानिए, डेफिनेटली गॉड इज़ विद यू। इफ़ यू आर स्टिल इन द सिचुएशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अगर अभी भी आप किसी निराशा की सिचुएशन में हैं, तो बिल्कुल आपको ज़रूरत है कि जो भगवान आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा और बढ़ाइए, अपना इंटेलेक्ट थोड़ा और बढ़ाइए, उस पर काम कीजिए। और ऑफ कोर्स उस पर काम ऐसे ही होता है, सरेंडर टू गॉड, जो कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मैसेज दे रहा है कि सरेंडर कर दीजिए, भगवान से ही पूछिए रास्ते, तो वो आपको दिखा देंगे। और भगवान ने आपके लिए रास्ते खुले छोड़े भी हुए हैं, आप ही नहीं देख रहे हैं उनकी तरफ, ठीक है। जिन लोगों ने ऑलरेडी पिक कर लिया है, जो लोग समझ गए हैं कि व्हाट डिवाइन वांट्स फ्रॉम देम, तो वो लोग आगे बढ़ चुके होंगे, नई शुरुआत कर चुके होंगे, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड प्रेजेंट है, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है, ठीक है। कोई एक चीज़ जो है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ये आपके पास्ट की एनर्जी में है। तो कुछ ऐसी चीज़ कुछ तो आपकी लाइफ में कंप्लीट हुआ है, कुछ द थिंग्स हैव कम टू द क्लोजर। और अगर कुछ अभी भी अनफिनिश्ड है, तो आपको कहा जा रहा है कि उसको फिनिश कीजिए, उसको क्लोज़र की तरफ लाइए, ठीक है। यहाँ पे मैसेज उन लोगों के लिए है कि अगर कोई डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन या डिसअपॉइंटिंग पीपल के पीछे अगर आप अभी भी भाग रहे हो, तो ब्रिंग दैट टू क्लोज़र, आपके लिए ये मैसेज है। अगर आप क्लोज कर चुके हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ चुके हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 5 ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है, डेविल के कार्ड के साथ ये दोनों कार्ड अपने आप ही गिरे थे, तो ये मुझे आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन दिखा रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में जिन भी लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है, जो लोग आपको खुशी नहीं देते, या जिन लोगों को समझने की कोशिश करना टाइम वेस्ट लगता है आपको, ठीक है, जो लोग नेगेटिव हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तो ऐसे लोग प्रेजेंट तो हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि 5 ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है। तो आपके लिए मैसेज, और जस्टिस का कार्ड भी आया है, ये सब कार्ड अपने आप ही गिरे थे। तो जो 8 कार्ड अपने आप गिरे, 8 कार्ड्स जो अपने आप गिरे, उनमें
फाइव ऑफ वंस, देन डेविल और जस्टिस, ये तीनों ही कार्ड्स प्रेजेंट है। तो आपको चिंता फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जिन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, जो कुछ लोग डेविलिश नेचर के हैं, जो जिनको आप सुधार नहीं सकते, जो सुधर नहीं सकते, आप एकदम अश्योर हो चुके हैं कि इनका मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, तो जस्टिस का टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। इन्हें भगवान ही सुधार सकते हैं, भगवान ही सुधारेंगे, ठीक है। सिक्स ऑफ वंस का कार्ड भी प्रेजेंट है, थ्री ऑफ वंस का कार्ड, टू ऑफ वंस का कार्ड, बहुत सारे वंड की एनर्जी है। नाइट ऑफ वंस का कार्ड भी प्रेजेंट है। ये आपको मैसेज दे रहा है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपना गोल सेट कीजिए, ठीक है। आप अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए, और आप काम कर रहे होंगे, बहुत से लोग काम कर रहे होंगे ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि यह सब प्रेजेंट की एनर्जी है। तो आप लोग काम कर रहे होंगे, और अगर आप अभी भी चीज़ों में स्टक हैं, अभी भी आप नेगेटिव लोगों में स्टक हैं, नेगेटिविटी में स्टक हैं, तो आप निकलिए उससे और काम कीजिए, क्योंकि जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, जो ओवरऑल एनर्जी है, वो सरेंडर की ही एनर्जी है। सरेंडर करो भगवान को और आगे बढ़ो, ठीक है। टू ऑफ वंस का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग आपकी बहुत ही कुछ यू हैव प्लान्ड समथिंग फॉर योरसेल्फ। जो लोग अभी यंग हैं, जो लोग नया जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने करियर के लिए कुछ सोचा होगा, बिल्कुल उनके अपने गोल्स होंगे, ठीक है। वेल्थ से रिलेटेड गोल होंगे, मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को बेटर करने के लिए गोल्स होंगे, अपना प्रोफेशनल जो है अपना प्रोफेशनल जो एक पोजीशन है उसको एनहांस करने के लिए गोल्स होंगे। तो यंग लोग तो इस तरह से सोच रहे होंगे, इस तरह से काम कर रहे होंगे, ठीक है। जो लोग जो हो सकते हैं, जो मतलब ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं, उनके अपने अलग गोल्स होंगे, ठीक है। वो परिवार को लेके उनके अलग गोल्स होंगे, वो परिवार को लेके सेटल, कुछ और बच्चों को सेटल करना चाह रहे होंगे, या कुछ उनके अपने अलग गोल्स होंगे। तो जो भी आपके गोल्स हैं, आप उनके ऊपर काम कीजिए। नाइट ऑफ वंड्स का मैसेज दे रहा है, नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि एनर्जेटिकली गो फॉर इट, ठीक है। ये एंथुजियाज्म का कार्ड है। आप एंथुजियास्टिकली जो भी आपके गोल्स हैं, आपसे रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, आप उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। और थ्री ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे ये दिखा भी रहा है कि आपने दैट द प्लान इज़ इन एक्शन, आप काम कर रहे होंगे, कर भी रहे होंगे, आपने स्टार्ट कर भी दिया होगा। द प्लान इज़ इन एक्शन, ये थ्री ऑफ वंड्स के कार्ड का मैसेज है। सिक्स ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप पूरा फोकस अपने लाइफ पर रखिए, अपने लाइफ की बेटरमेंट पे, फैमिली की बेटरमेंट पे, ठीक है। आप अपना पूरा फोकस जो भी आप चाहते हैं, जो फैमिली पीपल होते हैं उनका तो सारा गोल ही, सारे लक्ष्य ही फैमिली के इर्द गिर्द ही होता है, सब कुछ उनका फैमिली से रिलेटेड ही होता है। फैमिली की तरक्की में वो अपनी तरक्की देखते हैं, ठीक है। तो जो भी है आपका अपने आप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अगर आप यंग हैं तो आपको अभी लाइफ में बहुत कुछ करके दिखाना है, आप ऐसा कुछ सोचते होंगे, ठीक है। और अगर आप सीनियर हैं, सीनियर पर्सन हैं घर में, आपके बच्चे हैं जो जिनकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, जिनका करियर अभी सेट होना है, ठीक है, तो बिल्कुल आप उसमें सफल होंगे, क्योंकि ये सिक्स ऑफ वंड्स का कार्ड प्रेजेंट है। अगर आपने इस दिशा में, अपने गोल की दिशा में काम किया, अपने लक्ष्य की दिशा में काम किया, सब कुछ सरेंडर करके गॉड को, तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, ठीक है। सिक्स ऑफ वंड्स का कार्ड जो है वो पब्लिक रिकॉग्निशन का कार्ड होता है, कि आप जो भी स्ट्रगल क्योंकि फाइव ऑफ वंड्स जहाँ पर स्ट्रगल का कार्ड है, वहीं सिक्स ऑफ वंड्स जो है वो स्ट्रगल में मतलब ओवरकम करके एक स्टेब्लिशमेंट का कार्ड है, कि स्टेब्लिश पर्सन हो गया है और उसको रिकॉग्निशन भी मिल रही है, उसको प्रेज भी मिल रहा है, ठीक है, लोगों से, कि उसने प्रेज भी उसको मिल रहा है, उसकी तारीफ भी हो रही है। तो ये इस तरह का कार्ड है सिक्स ऑफ वंड्स। और सिक्स जो नंबर होता है वो भी लग्जरी का नंबर होता है, हैप्पीनेस का नंबर होता है। नंबर सिक्स विनस का नंबर होता है, तो लाइफ में हैप्पीनेस विनस से होती है। एस्ट्रोलॉजिकली इफ़ वी सी, तो जो शुक्र होते हैं सभी सुख के वो सुखदाता होते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आप आ जाओगे, आप अपने ऊपर फोकस होके काम करिए, और आप कर भी रहे होंगे, आई एम श्योर। तो रिज़ल्ट जो है वो पक्का है, ओके, रिज़ल्ट सुख में है,
और वैसे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप गिरा था, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रीडिंग में अवेलेबल है और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी अपने ऊपर गिरा था। ये सारी की सारी ये सारी चीज़ें यही मैसेज दे रहा है, ये सब कुछ यही मैसेज दे रहा है कि आपका फिनेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप फिनेंशियली अबंडेंट हो जाओगे। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स में ये कार्ड होता है हार्डवर्क का। जो पर्सन है वो आइसोलेशन में रह कर के हार्डवर्क कर रहा है। हो सकता है कुछ समय आपने अपने आप को आइसोलेटेड रखा हो, ठीक है, या आप अभी आइसोलेटेड हैं और मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है, अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना करियर इस्टेब्लिश करने के लिए हो सकता है आप अभी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये पेंटिकल्स की एनर्जी वाला कार्ड है, तो ये मैं आपका फिनेंशियल उस तरफ ही देख रही हूँ, आपका करियर, प्रोफेशन या धन संपदा लाइफ में इस तरह का, तो आप उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ देयर, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ देयर। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है वो वेल्थ का कार्ड होता है, लग्जरी का कार्ड होता है और ये मैसेज देता है कि यू विल एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्डवर्क। आप अपने हार्डवर्क का जो फल है वो ज़रूर आप एंजॉय करोगे, इस तरह का मैसेज देता है। तो आपने जो भी मेहनत, जो भी स्ट्रगल अभी तक की है किसी भी एस्पेक्ट में, जिस भी एस्पेक्ट में, कुछ लोग फैमिली के एस्पेक्ट में मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग करियर के एस्पेक्ट में स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग हेल्थ के एस्पेक्ट में स्ट्रगल करते हैं। तो जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में अभी तक रहा वो स्ट्रगल ही मेहनत है। जो भी मेहनत आपने की उसका आपको बहुत ही सुखद रिज़ल्ट अब मिलेगा, ठीक है। इस बात का मैसेज ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दे रहा है। और जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ये बहुत अच्छी आपकी फिनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, बहुत अच्छी एक कंप्लीशन, फुलफिलिंग कंप्लीशन ऑफ अ जर्नी, ठीक है, एक सुखद अंत। मैं ये कहूँगी कि एक जर्नी का सुखद अंत, और उस सुखद अंत में ऑफ कोर्स एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आना, जैसा आपने चाहा वैसा हो जाना, इस तरह से। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी प्रेजेंट है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो एक से ज़्यादा काम कर रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग जॉब में हो लेकिन किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या जॉब में हो कोई सोशल वेलफेयर का कुछ काम कर रहे हो। तो एक से ज़्यादा काम आप अपने हाथ में लेके चल रहे हो इस वक्त, ठीक है, और आप बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि जो पर्सन है उसका जो बैलेंसिंग स्किल है वो बहुत अच्छा है। वो एक से ज़्यादा चीज़ों को, इनफैक्ट 2 से ज़्यादा चीज़ों को भी अच्छे से बैलेंस करके वो काम कर सकता है। उसकी प्रायोरिटाइजेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हो सकते हो, एक से ज़्यादा इनिशिएटिव आप हो सकता है कि ले रहे हो, या आप हो सकता है सोच रहे हो, आप अभी कुछ कर रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा हो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, या कोई सोशल वेलफेयर का काम स्टार्ट करना है, या कुछ भी मोर देन वन इनिशिएटिव। दिस कार्ड शोज़ दैट द पर्सन इज़ हैंडलिंग मोर देन वन इनिशिएटिव, ठीक है। तो इस तरह से रीडिंग बहुत लंबी हो रही है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं। तो मैं आपके अगर मैं आपके व्यक्तित्व की बात करूं तो क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वंस, ये दोनों ही कार्ड अपने आप गिरे थे। आप हेरोफेंट की एनर्जी वाले पर्सन हो, तो अगर आप हेरोफेंट की एनर्जी वाले पर्सन हो तो बिल्कुल आप बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और प्लस आप रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को बहुत मानते हो, क्योंकि जो हेरोफेंट की एनर्जी वाला पर्सन होता है वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का बहुत पक्का होता है। वो सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसका कोई भी स्टेप सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने वाला तो हो ही नहीं सकता। बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन होता है। जब मैं डिसिप्लिन की बात करती हूँ यहाँ पर, तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि खाना पीना समय से, सोना समय से, वो वाला डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है, वो अलग बात है। यहाँ पर डिसिप्लिन की मैं बात कर रही हूँ कि आदमी प्रिंसिपल्स का बहुत पक्का है, ठीक है, बहुत ही, मतलब इसके जो एक्शंस होंगे वो बहुत डेलिब्रेट एक्शंस होते हैं। ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को कभी वायलेट नहीं कर सकता ये पर्सन। इसका कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाए। इसका हर काम ऐसा ही होगा जो सोशल नॉर्म्स के हिसाब से होगा, जिसमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को बहुत वैल्यू
जिसमें बहुत वैल्यू होगी, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की ये बहुत वैल्यू करता है और बहुत ही डिसिप्लिन रहता है। ये गलत सोच ही नहीं सकता, गलत काम ही नहीं कर सकता, ठीक है, काम करना तो दूर की बात है, सोच ही नहीं सकता। टेम्परेंस की एनर्जी वाला पर्सन है, स्टार है, द स्टार है, द हेरोफेंट। ये तीनों कार्ड को मैं एक साथ मिला के देखूँ तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअली अपने ऊपर वर्क करते हैं, अवेकनिंग के लिए वर्क करते हैं और जो भी आप सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं। यू थिंक अबाउट गुड एट अ लार्ज स्केल, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो आप केयरिंग है, कंपैशनेट हैं, आप सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स अदर्स फीलिंग्स, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत ट्रस्टवर्दी है। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप अपने आप से पूछिए, लुक इनवर्ड फॉर द आंसर्स, यू विल डेफिनेटली गेट इट, योर इंट्यूशन विल गेट यू एन आंसर फॉर योर क्वेश्चंस एंड योर इंट्यूशन इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी। आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, आप फोकस्ड हैं एंड यू आर अ पर्सन जो इंस्पायर करता है दूसरों को टू बी बेटर, यू इंस्पायर अदर्स टू बी बेटर, ठीक है। तो ये थी अभी की रीडिंग, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू।